Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. So today in this session we are going to discuss the most important issue with respect to northeastern region of India. Now this issue is also connected with the diplomatic relations between India and Bangladesh. Also there is one angle which is called as India-Pakistan angle. Now the news is Bangladesh brings Pakistan army to Rangpur, which is close to India's chicken neck corridor in West Bengal. Yes. सवाल ये उठता है that is South Asia is on the brink of a new geopolitical storm. In a shocking turn of this event, Pakistan army, which is also their intelligence agency ISI, have been spotted in northern Bangladesh area, right near to India's most sensitive and strategic region, that is Siliguri corridor, which is also called as chicken neck corridor. Now, with the rising tensions between India and Bangladesh following Sheikh Hasina's ouster, could this secretive visit signaling something bigger, perhaps brewing confrontation? So stay tuned as we are going to discuss this most important issue and its implication on regional future. So first we'll start with the background and what is the context of the news. So let's try with this. And also I would like to tell you that Pakistan and China have planned for double barrel for India's northeast. So this angle is also we are going to take in this session. Now, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? दैट रिसेंटली अभी हुआ ये है कि जो टीम है सीनियर ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आर्मी की और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज आईएसआई, दे हैव विजिटेड रंगपुर डिवीजन इन नॉर्दर्न बांग्लादेश ऑन 21st January 2025. Now, Rangpur, which is close to India's Siliguri corridor, which is also called as chicken neck corridor, which is a narrow and strategic strip of land which connects India's northeastern states to rest of the country. ये सबसे स्ट्रैटेजिक एरिया है किसके बीच में? याद रखिएगा, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है बाकी पूरे कंट्री के साथ. तो ये पूरी टीम आई है जिसको टीम रजाकर भी कहा जाता है. तो एक पूरा डेलीगेशन आया हुआ है. तो सोर्सेज से ये पता चलता है दैट इन ढाका 4-member टीम of senior officials from Pakistan Army and ISI, they have arrived on 21st of January and they visited Rangpur. And ये invitation किसने दिया था? This invitation was given by Bangladesh Army's principal staff officer, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन. SM कमरूल हसन ने लास्ट वीक ही इस्लामाबाद में विजिट किया था. As you can see here, he visited last week इस्लामाबाद और इन्होंने ही इनवाइट किया है पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ डेलीगेटेड ऑफिशियल्स को. तो अब डिटेल्स क्या है इस विजिट की? इस डेलीगेशन में कौन कौन आया है पहले हम ये समझ लेते हैं. दिस डेलीगेशन इंक्लूड 4 members which is led by ISI चीफ. जी हां, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक. अभी कहा जा रहा है कि ये अनकंफर्म है कि वेदर he was actually there or not. Now, apart from him, there are other peoples like Major General Alam Amir Awan and Major General Shahid Amir Afsar. ये सभी बड़े लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं ये सभी मौजूद हैं इस विजिट में. एंड दिस विजिट, और ये विजिट हो कब रही है? जब लास्ट वीक बांग्लादेश के ही ऑफिशियल गए थे विजिट पर इस्लामाबाद में, उन्होंने ही इनवाइट किया है इनको. So this visit was followed by an invitation by Bangladesh Lieutenant General SM Kamrul Hassan, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्स डिवीजन के, और जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया लास्ट वीक ही 13 to 18th of January. और ये 4 ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं, इन्हीं का डेलीगेशन आया हुआ है बांग्लादेश में. नाउ अब ये याद रखिएगा, रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डेलीगेशन आया है, ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है विच अराइव्ड इन ढाका,
This was arrived on 21st January on an Emirates Airlines. Emirate Airlines से आए हैं and ये जो फ्लाइट आई है दुबई होकर आई है वाया दुबई and they are on 4-day visit to बांग्लादेश और जिसमें कहा जा रहा है कि काफी सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी where they are going to hold the interlocutors and visit of top military establishment in the country. अब अभी इसके पीछे का आपको मैं छुपा हुआ एंगल भी बताऊंगा. द आईएसआई ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश कम्स बेयरली अ वीक व्हेन बांग्लादेश जो आर्म डिवीजन के एडवाइजर है उन्होंने विजिट किया था कमरुल हसन जी ने. उसी के बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ये डेलीगेशन आया है. अब ये डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस का. ये डेलीगेशन उस समय पर आ रहा है जिस समय पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. एंड दिस ट्रिगर्ड बिकॉज why this thing is there because of ouster of Sheikh Hasina in August 2024 and current government जो है वहां की which is led by Nobel laureate Mohammad Yunus interim government जो अभी वहां पर है दे उनके राज्य में काफी सारे कम्युनल टेंशंस चल रहे हैं, वाइड स्प्रेड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज. तो इंडिया का कंसर्न इस टाइम पर यह है कि ढाका को एक्यूज कर रहा है इंडिया दैट ढाका इज इग्नोरिंग द एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज एंड रिपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश प्रिपेयरिंग फॉर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद इंडिया ऑल्सो कि बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहता है ताकि इंडिया में, क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए. इसीलिए इन सभी बीच में ये डेलीगेशन जो अभी पाकिस्तान से आया हुआ है वो पता चल रहा है. अब सवाल ये उठता है why this delegation is important, what is the purpose of this delegation. while the specific regions जो हैं इस डेलीगेशन के वो अभी अनक्लियर हैं. As Pakistani officials met with Bangladeshi military leaders and visited important military establishment. So basically this thing has raised a concern for India because given the location it is near to the Siliguri corridor. तो जहां पर वो जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव लोकेशन है ना, रंगपुर, तो that is near to Siliguri corridor. अब सवाल ये उठता है why this Siliguri corridor जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, why the Siliguri corridor is important. तो अभी मैंने आपको बताया why the Siliguri corridor is important because the Siliguri corridor which is also called as chicken neck corridor, it is a narrow strip of a land. ये एक narrow strip है land की which is in West Bengal. ये कहां पर है, West Bengal area में. So this strip of a land is in West Bengal that connects India's northeastern states to the rest of the country. Now this is located between the Mahananda and Teesta rivers. तो ये कहां पर located है, this is located between Mahananda and Teesta rivers. Clear? तो ये याद रखिएगा, this is located between the Mahananda and Teesta rivers and that is why this corridor holds strategic importance for India from several perspectives, like from the perspective of geopolitical, economic and security point of view also because it connects India's 8th northeastern state. ये इंडिया के 8 नॉर्थईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, है ना, ये जितने भी हैं इन सभी से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है. तो ये जो सिलगुरी कॉरिडोर है इट इज अ 22 किलोमीटर वाइड लैंड. ये क्या है, दिस इज अ 22 किलोमीटर वाइड लैंड, है ना. सो ये जो वाइड लैंड है इट इज अ वाइड लैंड, it is a 22 kilometer wide land strip in West Bengal that connects India's northeastern states like Assam, Arunachal Pradesh to the rest of the India. And this is critical for India's security point of view as well and also economic connectivity in northeastern region. तो ये इंपॉर्टेंस है किस चीज की, ये इंपॉर्टेंस है सिलगुरी कॉरिडोर की, as you can see here. So this is having very much importance with respect to India's geopolitics as well as connectivity towards northeast. अब अभी मैंने कहा था that Pakistan and China have planned a double barrel for India's northeast. जी हाँ,
अब ऐसा क्यों है? ये न्यूज उस समय पर आ रही है जिस समय पर इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हैं। क्या इसमें थर्ड एंगल भी है? क्या इसमें चाइना का भी हाथ है? तो आइए समझते हैं इस बात को। तो आप मेरे सामने ये मैप देख रहे हैं और दिस इज द रीजन कॉल्ड एज चाइना एंड हाउ चाइना ने किस तरीके से एनसर्कल करा हुआ है इंडिया को, आप देख सकते हैं। तो अब यहां पर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाने चाहूंगा अल्फा के बारे में, है ना, जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप था, है ना, अल्फा, आसाम में, है ना। तो अब समझिएगा इस चीज को, अल्फा ने सरेंडर कर दिया था। सो व्हाइल अल्फा सरेंडर कैडर्स इन बांग्लादेश, जी हां, अल्फा सरेंडर्ड एंड देयर कैडर्स आर देयर इन बांग्लादेश एंड दे आर हैविंग कोजी मीटिंग विद आईएसआई। जी हां, अल्फा के जो कैडर जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, दे आर हैविंग अ मीटिंग with ISI in that is in Bangladesh near चित्तगोंग एरिया एंड डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं म्यांमार में ये भी उतने ही ज्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा, रीजनल पॉलिटिक्स के लिए। जी हां, अब ये कैसे? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया आईएसआई के जो डेलीगेशन है, पाकिस्तान की आर्मी का जो डेलीगेशन है, उन्होंने ढाका में विजिट किया है। सो ऑन 21 जनवरी एन अरब एमिरेट फ्लाइट EK586 they brought these three important officials, Lieutenant General Mohammad Asim Malik, जो कि डायरेक्टर जनरल आईएसआई के, then Major General Shahid Amir Afsar, Major General Alam Amir Awan. These three important officials arrived in Dhaka where they checked in Radisson Blue Hotel, 3rd floor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने चेक इन किया रेडिसन ब्लू होटल में 3rd फ्लोर पे एंड फिर ये मिलते हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम से। जी हां, तब ये मिलते हैं किससे? मेजर जनरल जहांगीर आलम, जो कि बांग्लादेश के DGFI है। क्लियर? अब इसके बाद हुआ क्या, तो आइए समझते हैं इस बात को। अब यहां पर मैं आपको एक दो पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। आईएसआई और DGFI जो है बांग्लादेश के, दे आर कंडक्टिंग अ मीटिंग विद अल्फा। ये दोनों ही ग्रुप, बांग्लादेश के DGFI और ISI, ये दोनों ही किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं? अल्फा कैडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में सरेंडर किया था। अल्फा कैडर्स ने, जी हां, अल्फा कैडर्स ने बांग्लादेश में सरेंडर किया था। अब ये किस लिए? टू रीसरेक्ट टेरर कैंप्स नियर इंडियन बॉर्डर। तो अब आईएसआई फिर से अल्फा कैडर्स और DGFI अल्फा कैडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अल्फा कैडर्स जो हैं वो टेरर कैंप बनाए इंडियन बॉर्डर के पास। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं आपको एक चीज इसके पीछे बताना चाहूंगा कि ऐसा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये चीजें क्यों हमें दिखती है। मिलिटेंसी जो है काफी ज्यादा आ चुकी है नॉर्थ ईस्ट में, पास से अगर हम बात करें। सो मिलिटेंसी इन्फेक्टेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ बफर जोन, है ना। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलिटेंसी आती है तो वो बफर जोन क्रिएट करेगा और जिससे चाइना ऑपरेट करेगा फ्रीली बर्मा में। चाइना का मेन एम कहां पर है? बर्मा में। तो अगर मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में आती है तो चाइना क्या कर सकता है? इंडिया को बिजी कर सकता है उस मिलिटेंसी से निपटने के लिए। एंड चाइना विल ऑपरेट फ्रीली इन बर्मा बाय मेकिंग इंडियन आर्मीज एफर्ट डिफिकल्ट इन द रीजन। तब चाइना अपना डोमिनेंस लाएगा बर्मा में। एंड चाइना ने, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहा है, चाइना ने पहले भी ये चीजें की हुई हैं। चाइना हैज लॉन्ग फ्यूल्ड कश्मीर मिलिटेंसी टू कीप इट्स इन्वेस्टमेंट सेफ इन गिलगिट बल्टिस्तान। चाइना ने गिलगिट बल्टिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए कश्मीर में भी मिलिटेंसी को क्या किया है? काफी ज्यादा फ्यूल किया है पास्ट में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो अब आइए समझते हैं। तो those who believe Alpha and government of India have a peace deal must understand that Alpha was forced to make this deal. जी हां, जिनको ये लगता है ना कि अल्फा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस डील की थी, बट अल्फा को फोर्स किया गया था। कैसे फोर्स किया गया था? तो आइए बताते हैं। शेख हसीना ने अल्फा के टेरर कैंप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था बांग्लादेश में। अब इस टाइम पर शेख हसीना तो नहीं है बांग्लादेश में। हेमंत, इसीलिए जब लास्ट ईयर शेख हसीना को वहां से हटाया गया है,
व्हेन शेख हसीना एस्केप टू इंडिया, तब हेमंता विश्व शर्मा ने ये चीज बोली है, जो कि आसाम के सीएम है। हेमंता हिमसेल्फ सेड दैट इलेक्शन इन बांग्लादेश आर क्रूशियल फॉर पीस इन नॉर्थ ईस्ट। अगर बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए, बांग्लादेश इंस्टेबल रहेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी होगी। एंड करेंटली इन बांग्लादेश देयर इज नो गवर्नमेंट, दिस इज जस्ट एन इंटरिम गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो बांग्लादेश में अभी सिचुएशन कैसी है? एनार्की टाइप की है। ये आप देख सकते हैं, अल्फा लीडर्स ने, देख लीजिए, दे से क्रैक डाउन इन बांग्लादेश, शेख हसीना ने खत्म किया था। देन हेमंता विश्व शर्मा का स्टेटमेंट भी आया था कि बांग्लादेश का पीसफुल होना, वहां इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है। नाउ what is happening in Myanmar? Now we'll take the angle of Myanmar also, because all these things are connected with Northeast. That is why we need to understand the regional politics as well. So what is happening in Myanmar? So China क्या कर रहा है? China is deploying its private military contractors in Myanmar, disguised as ex-military operatives alongside personnel from Burma's regime in areas which are critical to Chinese interests. जी हाँ, China has deployed private military contractors in Burma as ex-military operatives. और ये कब से हो रहा है? याद रखिएगा, now Tatmadaw, which is now incapable of securing Chinese assets alone. अब ये अकेले चाइना के एसेट नहीं कैप्चर कर सकते। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो आप देख सकते हैं। चाइना का बहुत बड़ा एंगल है म्यांमार, दैट इज बर्मा में। तो अब आइए हम बात करते हैं म्यांमार वा आर्मी मूव्स फोर्सेस इनटू लाशियो। जी हाँ, अब म्यांमार में एक आर्मी है, यूडब्ल्यूएसए, है ना। अब समझिएगा इसके बारे में कि यूडब्ल्यूएसए has mobilized its troop in Tangyan region, that is North Shan region of Burma. Why? Because UWSA, it is the major arms supplier to revolutionary group. UWSA जो है ये मेजर आर्म्स सप्लायर है रेवोल्यूशनरी ग्रुप का। अब इनको आर्म्स कहां से मिलते हैं यूडब्ल्यूएसए को? तो अगर मैं आपको बताऊं, बिहाइंड द कर्टन यूडब्ल्यूएसए इज चाइनाज फेथफुल नॉन स्टेट एक्टर। जी हां, ये चाइना के कहने पर काम करते हैं। एंड बीजिंग थ्रू यूडब्ल्यूएसए हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज विद इन ईयर्स। बीजिंग ने इन्हीं के थ्रू बर्मा में अपने प्रॉक्सीज को डेवलप किया हुआ है काफी सालों से। जी हां, अब हम बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, दैट व्हाट चाइना हैज डन ओवर द इयर्स टू सराउंड इंडिया थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया हुआ है? नाउ एज यू कैन सी दिस मैप हियर, now gas pipeline from Pansai to Kyakfu, as you can see here, this is Kyakfu region, है ना। तो अब बर्मा में आप याद रखिए, गैस पाइपलाइन फ्रॉम पंसाई टू क्याकफू इन बर्मा, देन अलोंग विद हम्बनतोटा पोर्ट इन श्रीलंका। क्लियर? ये अगर आप देखें, ये जो गैस पाइपलाइन है पूरा, These are jugular veins of China. ये चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया नाउ शुड टेक द कमांड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब समय आ गया कि इंडिया को खुल के अपने अलाइज को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब मीनवाइल अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश में? अब आप सभी को पता होगा रखीने स्टेट, रोहिंग्यास का इशू, अराकन आर्मी जो है जिन्होंने हमला किया बांग्लादेश पर। अब ये भी एंगल हम यहां पर कवर करेंगे। कैसे? यूडब्ल्यूएसए ट्रूप्स इन शान स्टेट, जो कि शान स्टेट में है, दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज पीस कीपिंग फोर्स। ये अपने आप को एक तरीके से पीस कीपर बता रहे हैं। एंड दे आर सप्लाइंग आर्म्स टू देयर प्रॉक्सीज। जी हां, और इसी की आड़ में ये क्या कर रहे हैं? प्रॉक्सीज मतलब वेपन सप्लाई कर रहे हैं। सो यूडब्ल्यूएसए विल बी द फ्यूचर किंग मेकर एंड चाइनीज DJI ड्रोन्स, जिनका यूज किया गया था टू ड्रॉप दी बॉम्ब्स इन मणिपुर ऑल्सो। इन चाइना ने भी मणिपुर में, याद रखिएगा, अपने ड्रोन्स, DJI ड्रोन्स को सप्लाई किया था यूडब्ल्यूएसए के थ्रू ही। क्लियर? सो दीज थिंग्स वर आल्सो सप्लाइड बाय यूडब्ल्यूएसए। और ये किसके कहने पर काम करते हैं? चाइना के कहने पर। जी हां। अब अराकन आर्मी और चाइनीज एंगल क्या है यहां पर? अराकन आर्मी इज करेंटली फाइटिंग इट्स ओन वॉर। अराकन स्टेट का जो है ना, रखीने स्टेट इज इंपॉर्टेंट टू गेट गुड एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल। रखीने स्टेट इज काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सेस ऑफ बे ऑफ बंगाल। एंड चाइना यहां पर भी चाहेगा कि
पूरी तरीके से चाइना प्रेशराइज करे अराकन आर्मी को। वाई? चाइना विल श्योरली अप्लाई प्रेशर ऑन अराकन आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट। जी हां, चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटो बना लिया था, यहां पर चाइना प्रॉक्सीज बना रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर अराकन आर्मी अग्री नहीं करते हैं, देन यूडब्ल्यूएसए विल नॉट सप्लाई देम वेपन्स। अराकन आर्मी को वेपन कौन देता है? यूडब्ल्यूएसए। किसके कहने पर? चाइना के कहने पर। अगर अराकन आर्मी चाइना की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, देन यूडब्ल्यूएसए विल नॉट सप्लाई देम वेपन्स। और तब यूडब्ल्यूएसए किसको वेपन्स देंगे? रोहिंग्याज हु आर अगेंस्ट अराकन आर्मी। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? सो यूडब्ल्यूएसए इज वन ऑफ द मेन आर्म प्रोवाइडर टू इंसर्जेंसी ग्रुप इन बर्मा। यूडब्ल्यूएसए ही सबसे ज्यादा वेपन्स देते हैं चाइना के कहने पर बर्मा में। एंड टू सस्टेन देयर बैटल इन रखीने अराकन आर्मी विल हैव टू अग्री टू प्रेशर माउंटेड बाय चाइना। तो अराकन आर्मी को चाइना का प्रेशर मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वरना उनको वेपन्स नहीं दिए जाएंगे और चाइना किसको वेपन दे देगा? रोहिंग्यास को दे देगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, अब इंडिया को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा अपने अलाइज को, है ना। तो इन सभी के बीच में हमने क्या देखा कि आईएसआई का और पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन आ रहा है बांग्लादेश में। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है जो छुपा हुआ है यहां पर। अब स्पेक्यूलेशन और कंसर्न्स क्या हो सकते हैं यहां पर? फॉर एग्जांपल, आईएसआई की प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट में, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक possibly heading this delegation, and there are speculations due to matching the names of delegation member and ISI chief. Now apart from this, Bangladesh Pakistan military cooperation, जी हाँ, again बांग्लादेश क्या कर रहा है? They are strengthening their ties, military ties with Pakistan. समझ में आ रहा है? Then apart from this, this is going to impact this will have a direct impact on India Bangladesh relations. Now India's strategic worry is also there, like proximity to Siliguri corridor. This raised a security alarm, security concern, and there are potential implications for India's northeastern connectivity also. So ये सारी चीजें जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है from the perspective of geopolitics. Now what can be the broader implications? अब हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है? बांग्लादेश शिफ्ट। जी हाँ, अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है बांग्लादेश शिफ्ट कैसे? बांग्लादेश इज अलाइनिंग मोर टुवर्ड्स दी पाकिस्तान इन पोस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट। जी हां, सो क्वेश्चनेबल स्टैंड्स ऑन माइनॉरिटी राइट्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। और इसी वजह से अभी जो रिलेशंस है इंडिया और बांग्लादेश के, दोज रिलेशंस आर नॉट गुड, द रिलेशंस आर टेंस। सो बैकग्राउंड क्या अभी हमने डिस्कस किया, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव वर्सेंड since former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina was ousted in August 2024, and the current interim government in Bangladesh, which is led by Yunus, है ना, Muhammad Yunus, Nobel laureate, is accused of not addressing the communal violence against the minorities, particularly Hindus, and this basically has strained the relationship with India. तो ये काफी ज्यादा important है। Now, apart from this, अब इसके अलावा अगर हम बात करें माइनॉरिटी राइट्स, इन सभी चीजों के बारे में, तो इंडिया के लिए कंसर्न्स क्या है? नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर इंस्टेबिलिटी होगी बांग्लादेश में, दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया आल्सो, सिलगुड़ी कॉरिडोर आल्सो। सो इंडिया इज वेरी ऑफ ग्रोइंग टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड दिस मे इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक Siliguri corridor. Then there are fears that this could signal Bangladesh preparing for a potential military confrontation, कि बांग्लादेश शायद हो सकता है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए तैयारी कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इन सभी मीटिंग्स का मतलब यही निकल के आ रहा है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से यही पता चल रहा है। तो और ये सारी चीजें कब हो रही है? अभी 26 जनवरी से पहले, दैट इज रिपब्लिक डे। सो मीनवाइल इंडिया क्या कर रहा है? मीनवाइल ईस्टर्न कमांड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स has commenced ops alert along the India-Bangladesh border ahead of Republic Day. So patrolling continuously चल रही है, patrolling has been intensified and border domination is being carried out during day and night. तो काफी ज्यादा टाइट पेट्रोलिंग चल रही है अभी बॉर्डर एरियाज में। जी हाँ, तो ओवरऑल अगर हम इन सभी चीजों की बात करें, so the Siliguri corridor is India's lifeline to the northeast.
And any movement near this corridor, it sends alarm bells, okay, to India. So with Bangladesh now strengthening ties with Pakistan's military and intelligence, are we witnessing the rise of a new alliance against India? As tensions escalate, what lies ahead for South Asia's fragile stability? So let us know your thoughts in the comment section. And are we on the edge of something monumental? So don't forget to like, share and subscribe for more updates on these developing story. Thank you so much.